This is the Mahindra Thar, and this is going to be quite the test. Torrential rain, and see what it's like. Here we go, people. We are on the off-road course in the Mahindra Thar. So this is a purpose-built off-road vehicle. महिंद्रा थार की रॉक्स गाड़ी आई है, 5 डोर की गाड़ी है ये, हाँ 5 डोर वाली। अच्छा, अगर आपके पास हो तो? अगर मेरे पास हो तो मैं तो पूरी लाहौर की आंटियां घुमाऊं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी सेम पर महिंद्रा ने इस बड़ी पावर को सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, पर अपने से 3 से 4 गुना महंगी गाड़ियों को पछाड़ते हुए ये रेस में सेकंड पोजीशन पर भी आई है। इन बातों से क्लियर हो जाता है कि महिंद्रा के इंजन काफी ज्यादा रिलायबल हैं और अमेरिकन्स भी इनको आगे और भी पसंद करने वाले हैं। It's a bit easier, which is good. But of course, you've also got low range transfer case, so you are able to tackle serious off-road terrain with ease. इतने ज्यादा जितने इसमें फीचर है इतने उसमें नहीं होंगे। पाकिस्तान में आप बाइक की गाड़ी सर्च कर सकते हो, इससे मिलती जुलती गाड़ी है। 1 करोड़ से ऊपर की उसकी कीमत है। अभी आप खुद आप इंसाफ कर रहे हो। आप गलत बोल गए मेरे ख्याल, 16 लाख बहुत कम है, नहीं हो सकता ब्रदर। यही गाड़ी सिर्फ आपको 13 लाख रुपए में मिल जाए। अगर 13 लाख की मिलती है ना, यकीन करें इस तरह की 2 मैं आपको ले देता हूँ, 1 मैं अपने के लिए 2 आपको ले दूंगा। और बता। जय हिंद दोस्तों, इलॉन मस्क भारत आकर टेस्ला बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं अमेरिकन थार के दीवाने हो चुके हैं। एक अमेरिकन जो कि भारत विजिट पर था, इस अमेरिकन ने महिंद्रा थार चलाई और कहता है मैं थार लेकर ही अमेरिका वापस जाऊंगा। नो डाउट अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा थार की काफी अच्छी डिमांड है। Mahindra Thar, come on! Guys, behind me is a car that is, well, illegal to buy in Australia. And इंडिया की कैसी अचीवमेंट को देख रहे हैं, गाड़ी जो बना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपकी बात सच है, जो कि मुझे नहीं लग रही, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप दिसंबर में अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। नहीं चलो ठीक है, आप एक दस सर्च भी कर लीजिएगा। उनका महिंद्रा थार के नाम से जो है ना गाड़ी है, जीप है, आप सर्च करें आपको पता। बहुत बड़ी बात है। On the off-road course in the Mahindra Thar. So this is a purpose-built off-road vehicle. It may look like some other vehicles and behave like some other vehicles, but this is a car with plenty of heritage here in its home market of India, and we are copping the Indian weather today. This is quite a storm that we're encountering at the moment. It's been sunny and hot all day, and now it's pissing down rain. So yeah, this has been a fun day, and this is a fun car, let me tell you. Now, Mahindra has explicitly said that we're to tell you that this is not coming to Australia. This is just a bit of fun to test out what this brand is all about, and the I guess the heritage that the brand has. So it knows all about off-roading, and it's been doing off-road vehicles for decades. Sorry about the noise and the rain and the windscreen wipers and the rain hitting the roof. This is a hardtop. This is a pre-production vehicle, a vehicle that's copped a lifetime of poundings already. But yeah, it's not necessarily representative of what an Indian customer might be able to get, but it is still pretty amazing in terms of what this thing can do straight off the showroom floor. This one's the automatic. Some of the other models behind me in the Convoy are manual, but I lucked out. I got the auto, which makes things just a bit easier, which is good. But of course, you've also got low range transfer case, so you are able to tackle serious off-road terrain with ease. Railway track, the Chennai Express, this track is called. So it's just a bunch of railway sleepers. See how this thing handles bumps, and obviously it's a short wheelbase vehicle, so it does have a bit of a bumpy nature to it. It's like rocking the boat. One thing I'm noticing straight away is that this car has a very different steering feel to the Scorpio, which I drove on these tracks. You have to be fast. Okay. Yep, come back. Yeah, stop. Now fast. Now you have to be fast, yeah. That was something, guys. A little bit of poo came out.
So I drove the Scorpio on this track a little bit earlier today, and instantly this car feels like a much more purpose-built vehicle. It is made for off-roading. It isn't as composed or as comfortable, nor is the steering as light and direct when it comes to quick, low-speed maneuvers. It's got a bit more heft to it, and also, look, it isn't as comfortable. This is just the way of this thing. It is a short wheelbase vehicle, and it is quite small, and it's made for a purpose, and we're exploring that purpose right now. But I don't know that it makes me feel any more confident. It makes me feel like maybe I don't know what I'm doing a little bit more than I did in the Scorpio, which I think is a tick to the Scorpio, right? I did have a few issues with the controls of the car, namely the throttle response, which for the rev-happy turbo petrol engine made it harder to modulate your speed, even in low range. The brake pedal too felt somewhat squishy underfoot, but remember, the Thar I drove was a development model that had seen a whole lot of trauma before I even got in. One thing that wasn't as confidence-inspiring as I would hope it would be in these sorts of scenarios was the auto electronic locking rear differential and the front locking diff as well. And now what the difference is here is that these are electronically actuated when there is slip detected. So you already have to be slipping before the diff will lock in. Whereas in other cars, if you know that you're likely to experience slip. अच्छा अगर आपके पास हो तो अगर मेरे पास हो तो मैं तो पूरी लाहौर की आंटियां घुमाऊं। अच्छा जी आप क्या कहेंगे? मैं भी सेम टू नहीं, मैं अपने घर वालों को घुमाऊंगा इसमें। वाह जी वाह, क्या बात। जब आप लोगों ने बात की है, ये महिंद्रा थार भी है और पहचान भी लिया है। ये गाड़ी बताइए ये है कहाँ की? ये इंडिया की है। इंडिया की गाड़ी है। इंडियन गाड़ी है। इंडियन गाड़ी है। थार इंडियन कंपनी है। 14 अगस्त 1947 को जिस फार्म पे कैद आजम ने साइन किए थे ना, उस फार्म के मुताबिक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ऐसा आज़ाद मुल्क है, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क ही नहीं है, लेकिन वो हकीकत में नहीं है, वो बस कागज में ही आज़ाद है। भाई इंडिया देखिए तरक्की कर गया। तरक्की कर गया। हाँ जी भाई। पाकिस्तान पीछे रह गया है। पाकिस्तान वाले ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲਟੋ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਪਾਕਿस्तान जो बनाते हो की बनाते हो ਉਹਦੇ ਚ? पाकिस्तान की आल्टो 40 लाख की और सेम आल्टो इंडिया में 4.5 लाख रुपए की। 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 12-13 ਲੱਖ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ये क्या कीमत हो सकती है इसकी? नो आइडिया। आप दे सकते हैं मुझे आइडिया। आप क्या कहते हैं? आई हैव नो आइडिया। फिर भी कोई गोदा 1 करोड़ तक जी 1 करोड़ 1 करोड़ आप अभी 1 करोड़ मनूजा गड्डी तो खा लिया स्टेयरिंग 1 करोड़ रुपए का कहन भी कम से कम कोई 15। अगर यही गाड़ी सिर्फ आपको 13 लाख रुपए में मिल जाए ओए गोदा करे हुने दे एटीएम दे गोदा ये तो फिर न्यूज़ छोड़ने हुने का दे जानो पक्का वो है यार। क्या कहने हुने बैंक अकाउंट है हुने सेंड करना तेनू 13 लाख क्या 15 लाख करना मैंने हुने करा दे बैंक अकाउंट शेयर कर। भाई सही बोल रहे हैं। सच में वो तो सच में रेडी बेच के सात अकाउंट में है 6 रेडी बेच के आपको देता हूँ, बेफिक्र रहे आपको भी। अगर 13 लाख की मिलती है ना, यकीन करें इस तरह की 2 मैं आपको ले देता हूँ, 1 मैं अपने के लिए 2 आपको ले दूंगा। और बता लिहाजा ये गाड़ियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान की मैं चाहता हूँ होनी चाहिए। पाकिस्तान में ना मेरी बात सुन, आजकल 13 लाख में मेहरान मिलती है, वो भी खस्ता हाल में, जिसका बहन जो इन सॉरी कट कर देना इसको, ये गलत बात कर गया, जिसका इंजन कहीं नजर आता है और टायर कहीं नजर आते हैं। 13 लाख की वो गाड़ी पाकिस्तान में मिलती है। हाँ इंडिया के पास इंडिया नहीं बना सकता। हाँ इंडिया। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है इंडिया नहीं बना सकता। क्या वजह क्या है? वजह नहीं वजह नहीं है, वो बना सकता है। मैंने देखी है। आपने देखी है? देखी है मैंने। अच्छा आपने इस तरह की गाड़ी की बड़ी जो कि सिंगर है, सेलिब्रिटीज है, आपने उसके पास भी देखी? सिद्धू मूसेवाला है, सिद्धू मूसेवाले उसके पास भी तो था ना। उसके पास था सर महिंद्रा थार। ये है महिंद्रा थार रॉक्स, ये लेटेस्ट मॉडल आ गया। अगर पाकिस्तान में भी हो तो कितने की होगी? 1 करोड़ से ऊपर की होगी। पाकिस्तान दे विच ना इवें एक गड्डी में हल्दी इवें रोड दे उत्ते इवें चलदी है, उनदा स्टेयरिंग ते गियर पकड़ के लावना पौंदे, ठीक है ना। ते ओ भी वेण दी लन 20 लाख रुपए दी है, 22 लाख रुपए दी है। ते ये तो यार इत्थे पाकिस्तान च आवे ते कंपनियां नाल लभन, मेरे हिसाब नाल लोग 13 लाख जमा। मैं तैनूं दसना एक गल, पाकिस्तान दे विच इस गड्डी दा तू निजाम ला दे, तू इत्थे चौक च बह जाके गड्डी मेरे कोले 13 लाख, इत्थे हुणे 500 बंदा तेनू 13 लाख रुपया क्या 20 लाख जमा करवे सी, ते तू ही हफ्ते बाद नजर नहीं आना हफ्ते बाद। जय हिंद दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि एक अमेरिकन महिंद्रा थार को किस तरह से चला रहा है और वह चाहता है कि महिंद्रा थार अमेरिका में उसको मिल जाए। वह जिस तरह से महिंद्रा थार के मजे ले रहा था, कहता है कि इससे बेटर गाड़ियां तो हमें अमेरिका में भी नहीं मिलती है। और महिंद्रा थार की
कंपैरिजन वहां किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी स्ट्रांग गाड़ी है जो कि हर ट्रेन में चलने के लिए रेडी है और हर जगह इसका परफॉर्मेंस काफी दमदार रहा है। वहीं जब बात करते हैं पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों की लार टपकने लग जाती है महिंद्रा थार को देखकर। सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं कि यह भारत की कार हो ही नहीं सकती, यह थार किसी अमेरिकन या फिर जर्मन कंपनी की बनाई हुई लगती है। लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चली तो वो कहते हैं कि 13 लाख में अगर ये कार मिलती है तो हम डेफिनेटली 2-4 खरीद लेंगे। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तानी रुपयों में तो ये काफी ज्यादा हो जाता है, प्लस कस्टम पाकिस्तान के लिए भी ज्यादा हो जाता है। और महिंद्रा तो वैसे भी पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करता है और न ही भारत सरकार इजाजत देती है कोई भी ट्रेड पाकिस्तान से करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी मरे जा रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें भारत से ट्रेड करनी है और सारे ट्रेड रूट्स ओपन करो और भारत से पहले की तरह ट्रेड करो। दोस्तों 370 हटने के बाद से लेकर अभी तक का जिस तरह से 2019 में इमरान खान ने जोश में आकर ट्रेड बंद कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम को काफी चीजें महंगी मिल रही है। दोस्तों पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तरफ से तो वह टेरर अटैक करते रहे और दूसरी तरफ भारत से ट्रेड की बात। और समय समय पर डॉक्टर जयशंकर बोलते आए हैं कि टेरर और बिजनेस एक साथ नहीं हो सकता। जो भारत की कंडीशन है अगर उसको पाकिस्तान फुलफिल कर लेता है, उसको मान लेता है, तो आपको भारत से ट्रेड करने की अनुमति मिल सकती है। आप क्या समझते हैं महिंद्रा थार के बारे में? कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।